I am Dr. Amit Bhatnagar, professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What are the components of a soil system and how these components differ from soil to soil, and what is the importance of these components? I'll describe all these in this lecture. Actually, soil has three phase: solid phase, liquid phase, and gaseous phase. And a lecture has been already uploaded in this channel. You can watch that lecture. And the next is the component. What are the component of a soil? So generally, there are four component. We consider four component of a soil system. First one is mineral matter. Second one is organic matter. These come under solid phase, and the air that come under gaseous phase, and the water that come under liquid phase. So there are three phase and four components, and these four components are very important from soil fertility point of view. First one is minerals, एंड सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक्स. हम सभी जानते हैं कि सॉइल कहाँ से मिलती है. जो रॉक्स होती हैं उनकी वेदरिंग होती है, उससे मिनरल्स निकलते हैं और इन मिनरल्स से ही जो है सॉइल बनती है. फर्दर उसकी वेदरिंग होती है, स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले. तो मिनरल इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट of a soil system, and it is responsible for supply of the nutrients. So minerals may be calcium, magnesium, silicon, iron, aluminium. There are a number of minerals, means a number of elements are present in soil through weathering of rocks, and actually these minerals are the nutrients. तो जो मिनरल्स होते हैं यही न्यूट्रिएंट होते हैं, चाहे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, सल्फेट है, ये सारे क्या है, मिनरल्स हैं, और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं. तो फर्स्ट कंपोनेंट इज मिनरल, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स. एंड सेकंड कंपोनेंट इज ऑर्गेनिक मैटर, and organic matter is derived from the plant and plant residue, animal residue, microorganism also, but the major component of organic matter is plant residue, root, shoot, etc. And this organic matter is also important from soil fertility point of view. It is responsible to maintain the soil physical properties, biological properties as well as chemical properties. तो ये ऑर्गेनिक मैटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनरल्स की लीचिंग ना हो, मिनरल्स को रोक के रखता है थ्रू CEC, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी. इट हैज़ वेरी हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. तो पानी जो रोक के रखता है सॉइल के अंदर, जो प्लांट्स को अवेलेबल होता है. माइक्रो एक्टिविटीज आर मेंटेन थ्रू ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज इट इज फूड सोर्स. तो सॉइल एग्रीगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉइल की पोरोसिटी के लिए, बल्ड डेंसिटी के लिए. तो ऑर्गेनिक मैटर की बहुत फंक्शन है. उसके ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड है, यू कैन वॉच दूज लेक्चर रिलेटेड टू ऑर्गेनिक मैटर. सो इंपॉर्टेंट वन इज मिनरल, प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स. देन ऑर्गेनिक मैटर, इट हैज several many positive impact on soil. A soil without organic matter is nothing. एक soil के अंदर अगर organic matter हम निकाल दें तो फिर वो soil के अंदर कुछ नहीं बचता. एक समझ लीजिए एक तरह की वो रॉक्स ही हो गई और जिसमें फिर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी. ऑर्गेनिक मैटर का होना बहुत जरूरी है. तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सॉइल फर्टिलिटी. अगर मिनरल्स बहुत है लेकिन ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है एडवर्सली अफेक्ट होती हैं. तो ऑर्गेनिक मैटर का होना बहुत जरूरी है. एंड थर्ड इज एयर. दिस कंपोनेंट is in gaseous phase, and air is important from a respiration point of view, क्योंकि जो roots होती हैं soil में they require oxygen through air. So this air is very important for microbial respiration point of view and the root respiration point of view. So air is very important. So in aerobic soil, if air is maintained, the plant growth is good, microbes are very good, bacterial activity is very good, and mineralization process and other processes are वेरी गुड. तो जो सॉइल का एरेशन है वो सारी रूट की एक्टिविटी को डिसाइड करेगा, क्योंकि वही एयर प्रोवाइड करेगा, माइक्रो एक्टिविटी करेगा. माइक्रोब्स जो है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस है और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, सब में इन्वॉल्व होते हैं. तो बिना माइक्रोब्स के सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती. बहुत इन्वॉल्वमेंट है माइक्रोब्स का, तो एरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द थर्ड कंपोनेंट. एंड फोर्थ कंपोनेंट वी कैन से इट इज वाटर. एंड वी नो वाटर इज इंपॉर्टेंट, इट इज वाइटल. एंड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जिंदा रह सकता बिना वाटर के, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, चाहे प्लांट रूट्स हैं. तो ये दीज आर द फोर कंपोनेंट, एंड दीज टू कंपोनेंट्स आर सॉलिड in solid phase, and this component is in gaseous phase and it is in liquid phase. And now we see the what is the proportion, and actually we see on the volume basis. अगर हम volume basis लें, मतलब 1 क्यूबिक मीटर सॉइल को लें, 1 मीटर लेंथ लें, 1 मीटर विड्थ लें, 1 मीटर हम डेप्थ ले लें, on volume basis, if we see this mineral, then these minerals are about 45%. 45% is mineral, and organic matter on an average it is
5%, अगर 1 क्यूबिक मीटर में हम लेते हैं तो 5 जो उसका 5% है वो कौन ऑक्यूपाई करेगा? द स्पेस इज ऑक्यूपाइड, 45% स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय मिनरल। सो वॉल्यूम बेसिस ये है कि माना जो है 1 मीटर की हमने लेंथ ली, 1 मीटर की हमने डेप्थ ली और 1 मीटर की हम अगर विड्थ लेते हैं, तो ये जो सॉइल की जो वॉल्यूम बनेगा, ये जो 1 क्यूबिक मीटर का जो क्यूब बनेगा, दिस इज द वॉल्यूम। So on this volume basis 45% is space is occupied by mineral। तो 1 क्यूबिक मीटर का अगर हम सॉइल का वॉल्यूम लेते हैं तो उसका 45% कौन है? मिनरल्स है, 5% ये है। एंड दीज आर द वेरिएबल, एयर एंड वाटर इज वेरिएबल। ये दोनों फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इफ वाटर इज मोर देन एयर इज लेस, इफ वाटर इज less than air is more, because these are present in pores। तो ये किसमें है? pores में होते हैं। and pores aggregation is decided by these minerals and organic matter by their arrangement। तो mineral और जो organic matter है, humus है, उनका arrangement होता है, उस arrangement के थ्रू pores बनता है, aggregation होता है, उस pores के बीच में कौन रहते हैं? air and water रहते हैं। एंड इसका जो कंपोजिशन चेंज होता रहता है ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज। मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल, मीडियम टेक्सचर्ड मीन्स ना तो ये बहुत क्लेगी है ना बहुत सैंडी सॉइल है, मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल। दिस एयर इज अबाउट 15 to 35% and water is also 15 to 35% on volume basis। so this is the on an average। ये एक on an average बात हो रही है, उसकी बात नहीं है कि ये इतना इतना होगा, इसकी ये बात है कि ये कितना अप्रोक्सीमेट होता है। if it is air dried, if air dried हम ले रहे हैं एयर ड्राई सॉइल मीन्स हमने सॉइल को निकाला और उसको हमने रख दिया एयर में कुछ दिनों के लिए, वो एयर ड्राई हुई, तो क्या होगा? वाटर कंटेंट इज लॉस। तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वाटर एवोपरेट कर जाएगा। देन इन दिस केस दिस इन एयर सॉइल ये तो चेंज नहीं होगा। वाटर इज अबाउट 5 to 10% एंड जितना कम होगा उतना क्या हो जाएगा? एयर बढ़ जाएगी, तो एयर जो है 40 to 45% हो जाएगी। देन इन दिस केस एयर इज अबाउट 40 to 45%। सो दिस इज दी ऑन एन एवरेज ऑन वॉल्यूम बेसिस। अगर हम इसको वेट बेसिस पे लें कि अगर वेट हम लें कि हम अगर 1 kg सॉइल लेते हैं या वी टेक अबाउट 100 ग्राम सॉइल, सो व्हाट इज द वेट? वेट बेसिस तो इसका क्या अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन होगा? अब जब हमने वेट लेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा? मिनरल्स का होगा, क्योंकि वो रॉक से बनी है, रॉक को टूट टूट के वेदरिंग से सॉइल बनी है। तो सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा? मिनरल्स का होगा एंड इट इज़ अबाउट 85 to 90%। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 85 to 90% इज मिनरल्स। तो जो मिनरल्स हैं सबसे ज़्यादा सॉइल में क्या है? मिनरल्स होंगे। एंड ऑर्गेनिक मैटर में भी 4% 5% डिपेंडिंग मतलब सॉइल, इसका बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, अबाउट 4 to 6% भी हो सकता है, 4 to 5%। एंड उसमें क्या होगा? वाटर जो होगा, अब इसमें जो है जो हम वेट ले रहे हैं, एयर का वेट तो होगा ही नहीं अब, क्योंकि एयर का तो अपना वेट नहीं होगा, केवल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उस केस में हमने एयर ड्राई ले रहे हैं तो वाटर जो है करीब 5 to 10% ही रहेगा। एयर ड्राई पे अगर हम ले रहे हैं 5 to 10% ऑन वेट बेसिस, तो इसका कोई वेट नहीं होगा एयर का, नील। तो दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड ऑन वेट बेसिस व्हाट इज द वेट ऑफ एयर, it is about nil, but in volume basis it is about 15 to 35%, but in air dry it is air is 40 to 45%। तो इन फिगर को याद रखिए, जो एयर है इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, वेयर इन वाटर इट इज 15 to 35%, वाटर आल्सो। एंड ऑन एयर ड्राई सॉइल जो होगी उसमें 5 to 10% वाटर है और एयर 40 to 45% है। लेकिन वॉल्यूम बेसिस पे वेट बेसिस पे अगर हम देखेंगे इट इज नील है, इसमें नहीं है। एंड इट इज 85 to 90%। एंड दिस ऑर्गेनिक डिपेंड अपॉन कितना उसमें वेजिटेशन, अबाउट 4% से लेकर 5% तक हो सकता है, एंड वाटर इज अबाउट 5 to 10%। ये इसका कंपोजिशन है। एंड इसका इफ वी कैन रिप्रेजेंट इन ए पाई चार्ट, इन पाई चार्ट वी रिप्रेजेंट द थिंग्स विद कंपोनेंट ऑन परसेंटेज बेसिस। अगर हम इसका पाई चार्ट बनाएं, मतलब सर्किल से अगर इसको रिप्रेजेंट करें हम, दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड पाई चार्ट। पाई चार्ट वो होता है जो हम डिफरेंट परसेंटेज को एक सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज सपोज वॉल्यूम बेसिस, सपोज अगर हम वॉल्यूम बेसिस पे लें, इट इज कंप्लीट सॉइल वॉल्यूम बेसिस, दिस इज द पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन। हाफ इज सॉलिड एंड हाफ इज लिक्विड। तो इसका हाफ हमने कर दिया, ये 50% अप्रोक्सीमेट मान लीजिए, ये 50% कर लिया, एंड दिस 50% इज सॉलिड एंड 50% इज पोर स्पेस। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि किसी सॉइल में
आधा वॉल्यूम सॉलिड ही होता है। अगर हम पूरे क्यूबिक मीटर को निकाल लें तो उसमें आधा सॉलिड निकलेगा, आधा पोर स्पेस निकलेगा। ये फैक्ट है, हम सुनने में अजीब लग रहा है बट इट इज फैक्ट कि किसी सॉइल में आधा ही सॉलिड होता है और आधा क्या होता है, पोर स्पेस होता है। अब इस सॉलिड में क्या होता है, मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स रहेंगे और क्या रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। तो 40 to 45%, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 50% सॉलिड इधर लिख देता हूँ मैं इसको, 50% सॉलिड। एंड इसमें जो 40 to 45% क्या रहेगा, मिनरल्स एंड 5% इज ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका 5% ही मान लें हम, 5% इज ऑर्गेनिक मैटर एंड दिस 40 to 45% इज मिनरल। मिनरल्स बहुत हो सकते हैं, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं। एंड दिस 50% इज पोर स्पेस, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 50% पोर स्पेस। एंड देन इसमें 50-50 रहेगा। अगर 50% वाटर है, मतलब अगर 25% वाटर है तो 25% एयर रहेगी। तो फ्लक्चुएट करता है ये, तो इस तरह फ्लक्चुएशन को हम इस तरह इस डायग्राम से दिखा सकते हैं। फ्लक्चुएशन इट इज 15 to 35% एयर, देन इट इज 15 to 35% आल्सो। अगर 15 है तो ये 35 हो जाएगा, अगर ये 35 है देन इट हो जाएगा 15 हो जाएगा, मीन्स द सम इज 50, इट इज वाटर। सपोज वाटर विल डिसाइड द एयर, कि सॉइल में कितना वाटर है। वाटर ज्यादा होगा तो एयर कम होगी। इफ सपोज वाटर इज सपोज 40%, देन एयर वुड बी 10%, द सम इज 50%. Similarly, if water content is suppose is 20%, then air in soil would be about 30%, considering that 50% is pore space. So this is the pie chart representation. So in soil there are three phase: solid, liquid, gas. Solid, organic matter; liquid phase, water; and gaseous phase is air. And four component: minerals, organic matter, water, and air. So these are about the component of a soil system. Thank you very much.